मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पेविलियन में द यंग द डायनामिक एंड ड्रॉपिंग पर्ल्स ऑफ विजडम शोएब मलिक. शोएब, वेलकम. Good afternoon, Assalamu alaikum everyone, and welcome back. Thank you, Shoaib. Good to be back. With me, Mr. Dependable, the most successful Test captain of Pakistan's cricket history. I have Misbah-ul Haq. Misbah, Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम. The man of crisis, the silver fox of the pavilion. I've got none other than Mr. Crooked Fingers himself, Moin Khan. Moin, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, Fakar. Welcome back. Thank you. Assalamu alaikum everyone. And the cricket royalty himself, the Sultan of Swing, the undisputed king of all-rounders, His Royal Highness, Mr. Wasim Akram. Good morning, Wasim. Good morning, and assalamu alaikum everyone. Good afternoon. Just over 12 o'clock. Morning, afternoon, 12 बजे उधर से शुरू करके इधर तक आते हैं. Yes. Good to see you all, gentlemen. और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कल के मैच की. ये जरा मैच समरी आपके सामने लाते हैं. अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड कल का मैच था. न्यूजीलैंड गोइंग full steam ahead. Look at that. So Afghanistan winning the toss, putting New Zealand into bat. 288 रन किए न्यूजीलैंड ने. 6 खिलाड़ियों के नुकसान थे. It looked like a doable score, but then it looked like Afghanistan ने total surrender कर दिया. Now this 149 runs victory puts New Zealand way up top. This is going to improve their net run rate. Points उनके पास already मौजूद हैं. So this is how the match went down yesterday आप लोगों की खिदमत में. अब इसके साथ ही मेरा ख्याल है पॉइंट्स टेबल पे भी नजर डाल लेते हैं ताकि एक सूरत हाल हमें पता चल जाए कि पॉइंट्स टेबल की कैसे है इस वक्त. And this is how the points table is looking like at the ICC Men's Cricket World Cup. Now New Zealand, and look at that run rate, right? That run rate is very, very healthy. But India is trailing right behind them, very close to them. And then today, well, let's see what happens at the end of the day. But India should be able to dominate that points table as well. South Africa, Pakistan, right there. Even though South Africa did get a surprise by the Netherlands, but they are at number 3. And Pakistan is holding on to its position at number 4. We've got a big game with Australia tomorrow, and that should be a lot of fun. The top 4 teams qualify for the semi-finals, and that's how your points table is looking like. All right, let me start off. और आज आपकी खिदमत में एक और मुकाबला, and this is an interesting game. As I said, it's India. ये मैच आपकी खिदमत में आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है. Today we are taking you for the first time to Pune for the first game of this World Cup in Pune. This is India versus Bangladesh. 1:30 बजे आपकी खिदमत में ये मैच बराह रास्त शुरू हो जाएगा. उसके लिए आप लोगों को अब हम तैयार करते हैं, अपने पैनलिस्ट के साथ गुफ्तगू करते हैं इस मैच के हवाले से. Wasim, let me start off with you first up. It's easy. It looks like a lot of people have said, oh, ये कोई मैच नहीं है, इंडिया का, बांग्लादेश का and all that. और वर्ल्ड कप की तारीख को अगर रखा जाए तो 4 मैचेस इन दोनों ने आपस में खेले हैं. 3 जो है वो इंडिया ने जीते. I just want to say, और 1 बांग्लादेश ने. But that's not the only history that they have, right? No. होम सीरीज थी बांग्लादेश में, बांग्लादेश ने इंडिया को हराया. So there is, और अभी एशिया कप में भी रिसेंटली बांग्लादेश ने हराया. Sure. So should we think of this as a soft competition or a one-sided game, or has the ability to be a game that can go anyway? इजाज़त पाइन. I love this. It's not ijazat, it's jazat. 100%. Yeah, 100%. Look, recent form देखी जाए तो बांग्लादेश kind of dominated India. अभी जो सीरीज हुई थी वो भी ये 2-1 जीते थे जो बांग्लादेश में हुई थी, और लास्ट 4 मैचों में से 3 बांग्लादेश जीता. But this is new tournament, new game. India looks really good as far as their team concerned, their squad concerned. They're playing positive cricket. And Bangladesh, I think big question mark is their captain. I think he cord injury उसको हुई थी, but मेरा नहीं ख्याल cord injury इतनी जल्दी ठीक हो सकती है. अगर वो नहीं खेलते तो Bangladesh will struggle. But they have this guy called Mahedi Hassan, who took 4 wickets against England, but he didn't play against New Zealand, I think. अब उसको खिलाएंगे, किसको खिलाएंगे, और उसको खिलाते हैं तो India is very good against spin bowling too. So they are in a dilemma a bit. So I think the first step for them is to find out if their skipper is playing or not. Misbah, India's batting has been dominating this tournament. India as a team has been dominating. They look very, very good. सारे departments उनके covered हैं बिल्कुल. But again, when you have top batsmen in form, everybody has been scoring runs and all. How does an opposition plan its attack on the Indian batting? मेरे ख्याल में बांग्लादेश के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं कोलैप्स एक क्रिएट करें हो इंडिया की बैटिंग लाइनअप में. अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है उनको रोकना. जिस किस्म की फॉर्म में रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, शुभमन गिल, उसके बाद केएल राहुल, हर बैट्समैन उनका एक तो अच्छी फॉर्म में है, रन्स करते हुए आ रहे हैं. फिर उनकी होम कंडीशंस हैं. जहाँ भी बांग्लादेश ने इंडिया के अगेंस्ट अच्छा किया है, या तो उन्होंने अपनी कंडीशंस में किया है जहाँ उनको सूट करने वाली पिचेस हैं,
या जब वर्ल्ड कप में भी जीते थे तो वहाँ पे भी कंडीशंस बांग्लादेश टाइप की थी। इंडियन कंडीशंस में इंडियन टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप प्रीवियसली देखें जिस टीम के साथ भी वहाँ पे ये होम सीरीज़ खेलते हैं, चाहे वो दुनिया की नंबर 1 टीम हो, मुश्किल है उनको मैच करना। वो जिस तरीके से वहाँ पे बैटिंग करते हैं, वो ऐसे रन्स कर देते हैं और फिर बॉलिंग का उनको बहुत ज़्यादा आइडिया है। तो एक बड़ा ही मुश्किल किस्म का टास्क है किसी भी टीम के लिए इंडिया को इंडिया में हराना। बांग्लादेश एक ही सूरत है, ऊपर से कोई ऐसा कोलैप्स क्रिएट कर दें, वो 2-3 जल्दी आउट हो जाए, देन कहीं ना कहीं एक कोई चांस उनका फिर भी मुश्किल है, क्योंकि उनकी पूरी टीम का बैलेंस बड़ा ज़बरदस्त है और बॉलिंग एक बैलेंस बॉलिंग लाइनअप है, स्पिनर भी हैं, फास्ट बॉलर हैं, डिफरेंट किस्म के बॉलर, अच्छे बॉलर हैं। तो बिल्कुल 6 के 6 ऐसे हैं कि वो ना सिर्फ प्रेशर बिल्ड करते हैं, ना उनके सिर्फ डिसिप्लिन अच्छे हैं, बल्कि उनके पास अटैकिंग ऑप्शन है आउट करने के लिए। तो आई थिंक कोई मैच नहीं है, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर बांग्लादेश। एक चीज़ और है इसमें ऐड करने वाली, वो ये है कि इन दिस वर्ल्ड कप इंडिया इज ऑन टॉप एवरेज ओपनिंग स्टैंड इन द वर्ल्ड कप 2023, 60.33 उनका ओपनिंग स्टैंड है। फिर अफगानिस्तान है, फिर इंग्लैंड है, और जहाँ जिस वेन्यू पे आज मैच होने जा रहा है इन द लास्ट 10 years, वहाँ पे जो एवरेज है वो सबसे ज़्यादा है पुणे इन द लास्ट 10 years, 6.07। इस रेट से वहाँ पे रन्स होते हैं इन द लास्ट 10 years, और इतनी फर्स्ट इनिंग टोटल। इन फॉर्म बैटिंग लाइनअप, स्पेशली कैप्टन्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और स्ट्राइक रेट भी उनका 75 से 106 पे चला गया रोहित शर्मा का, हिटमैन का, तो ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को इस वेन्यू पे पुणे में आज रोकना, अर्ली 3-4 आउट करने पड़ेंगे ताकि वो थोड़ा सा टारगेट, अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है। सॉरी, हाँ, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। अभी जो मिसबा ने बात की है ना कि ऊपर से अगर विकेटें मिलती हैं बांग्लादेश को, तो एक चांस है कि कम टोटल पे अगर जो भी पहले बैटिंग करता है या वो चेज भी करे तो ऊपर से विकेटें गिरनी ज़रूरी है। उन बांग्लादेश के विकेटें चाहिए। साथ में ये ज़रूर देखें जो नीचे के बैट्समैन, अभी तक इंडिया ने इस तीनों मैचेस के अंदर 8 या 9 विकेटें उनकी आउट हुई हैं, जो भी उन्होंने मैचेस जीते हैं, यू नो। तो जो नीचे वाले बैट्समैन, उनकी भी बारी नहीं आई है सही तरह, यू नो। एक पॉइंट है कि एक प्रेशर हो सकता है, क्योंकि उनके लिए बैटिंग वाइज ये पहला ही मैच होगा, यू नो, तो वो प्रेशर क्रिएट कर सकता है बांग्लादेश के पास। एक और भी ये भी चांस है कि ऊपर से आउट करके इन पे पूरा प्रेशर डाल सकते हैं, वरना कोई मैच नजर नहीं आ रहा दोनों टीमों में। अच्छा सुने, ये कहना भी जो है ना, मैं कहता हूँ हमें बड़ा मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि हमने अफगानिस्तान इंग्लैंड में भी सोचा था कोई मैच नहीं नजर आ रहा, नेदरलैंड साउथ अफ्रीका में भी सोचा था कोई मैच नहीं नजर आ रहा, तो पता नहीं कब किस वक्त कहाँ पे कोई मैच पड़ जाए और कब किस वक्त हमें ब्रेक लेनी पड़ जाए। तो इस वक्त हम लोग लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द पेविलियन, मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप। और अब से कुछ लम्हे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर पुणे के हवाले से एक पैकेज था, इंटरेस्टिंग प्लेस। टेल अस मोर अबाउट पुणे, वसीम। Yeah, it's a beautiful stadium. It's about 2.5 hours drive from Mumbai, the Pune city, and weather is slightly cooler there because on the way you have this hills आती हैं दरमियान में, फेमस लोखंडवाला, ये सारे शहर वहाँ पे आते हैं जो हम फिल्मों में नहीं देखते रहते थे बचपन में, उससे दे ऑल देयर एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, इट्स लश ग्रीन ऑल द वे टू पुणे, एंड पुणे weather is slightly cooler and this stadium is just outside the city. And it's surrounded by hills and it's like a Joburg stadium. It's like a bull's ring. Okay. वो नीचे को है stadium and then ground and beautiful dressing rooms, beautiful facility, I must say. Yep, and an exciting pitch to bat on, Misbah. You'd definitely like to begin. बिल्कुल, जैसे मालिक ने पहले बताया कि 6.07 रन रेट यहाँ पे जो 7 मैच हुए हैं, और लास्ट यहाँ के जो 3 फर्स्ट इनिंग स्कोर्स हैं 329, 336, 317, इट मीन्स के 300 प्लस वाला पिच है। Well, let's find out more about the pitch. It's time for a pitch report brought to you by Onic. Wasim, your favorite subject. इजाज़त है पहले शुरू लेकिन यहाँ से करें, मज़े। या मज़े, जैसे शुएब मलिक ने कहा, लुक्स अ गुड ट्रैक एंड रॉक हार्ड, वो बदरी ने बताया, और घास भी देखे है मगर रोल्ड इन है, ड्राई ग्रास है, इट अपीयर्स इट विल बी इवन बाउंस। एंड बदरी ने और ये भी बताया कि बॉलर्स को, चाहे वो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, लॉट ऑफ वेरिएशन, चेंज अप्स विल वर्क ऑन दिस पिच बिकॉज अदरवाइज वो कहते हैं ना पंजाबी पटाखा विकेट है, पटाखा, concrete slab basically. Yes, concrete slab there. Let me bring this to you, Shoaib.
ये हम लोग पिचों की बात करते रहे और बड़ा था कि जी ये तो 300-400 रन वाला वर्ल्ड कप होगा और इधर तो 400 रन और 450 रन आप देखेंगे, सारा कुछ होगा। अभी तक कोई मैच जो है वो आखिरी ओवर तक नहीं किया, कोई वो सनसनीखेज जो नहीं होते, जो वर्ल्ड कप वाला फीवर होता है वो इधर मिसिंग रहा है। और कोई इतना बड़ा, हमने ठीक है 350 वो एक जो प्लस का स्कोर आया था हमने वो देखा है, सब देखा है, बट इट हैजंट बीन अ कंसिस्टेंटली कंप्लीट रन फीस्ट थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। उसमें देखें इंडिया में अब जब वर्ल्ड कप हो रहा है तो वेदर जो है वो गर्म है और T20 जब आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उसमें इतनी चेंज नहीं आती जो कंडीशंस हैं। लेकिन जब आप ODI क्रिकेट खेलते हैं, जब उस पर 50 ओवर्स होते हैं, फिर डे में डिफरेंट जो है कंडीशंस प्ले करती हैं, अंडर लाइट्स डिफरेंट जो है वो कंडीशंस प्ले करती हैं, तो इसलिए। और एक चीज़ और है, जो अच्छा स्पिनर है वो आउट कर रहा है यहाँ पे। हाँ, थोड़े रिस्ट स्पिनर जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट अच्छा फिंगर स्पिनर आउट कर रहा है, अच्छा सीम हिट करने वाला पेस बॉलर आउट कर रहा है। और एट द सेम टाइम बैटर्स भी जो हैं वो भी जो है वो कर रहे हैं, वो भी रन्स बना रहे हैं। और मुझे जो मेन चीज़ लगती है कि ये हमें क्लोज गेम्स इसलिए नहीं मिल रहे कि हम बहुत ज़्यादा जो टीम्स हैं वो इस पर रिलाई कर रही हैं कि पहले बैटिंग कर लें या बाद में कर लें। तो अभी तक देखें इंडिसाइसिव हैं। कल भी हमने न्यूजीलैंड का देखा, इवन दो दे हैव वन ऑल देयर गेम्स बट स्टिल कैप्टन वाज़न्ट श्योर व्हाट टू डू आफ्टर विनिंग द टॉस। तो ये जो एलिमेंट्स है थोड़े थोड़े, ये क्या करते हैं, वो बड़ा जो है ना उस चीज़ को एंड ऑफ द डे बना देते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे नहीं खेल रहे। मैंने इंडियन टीम जो देखी है कि दे आर कॉन्फिडेंट इनफ व्हेन इट कम्स डाउन टू दे बैटिंग फर्स्ट और बॉलिंग फर्स्ट, दे नो देयर प्लान्स। न्यूजीलैंड का भी मैं ऐसे ही सोचता था टिल येस्टरडे, बट जब मैंने उनके कैप्टन का इंटरव्यू सुना, सो आफ्टर लूजिंग द टॉस ही सेड आई एम नॉट श्योर, आई वाज़न्ट श्योर व्हाट टू डू आफ्टर विनिंग द टॉस। तो ये एक ऐसी चीज़। अब दूसरी चीज़ है कि पिचेस भी वाकई जो इसने बोला कि अभी तक हमने दिल्ली की पिच देखी और आज एक पहली पिच देखी जो बहुत फर्म लग रही है, जिस ग्राउंड में एवरेज स्कोर 309 है, तो यहाँ पे इस ग्राउंड में भी लगता है कि आज बहुत ज़्यादा चांसेस, अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो आपको एक नज़र आएगा। ऑल्दो हमने देखा, जैसे आपने बात की कि अभी बड़े स्कोर नज़र नहीं आए, तो साउथ अफ्रीका की जहाँ पे पूरी बैटिंग क्लिक हुई थी उस मैच में हमने देखा अगेंस्ट श्रीलंका 428 रन भी बनाए। ऑल्दो ये यहाँ पे श्रीलंका ने चेज भी अच्छा किया था, उन्होंने भी 300 प्लस रन करने की कोशिश की। आई थिंक जो चार्म है वर्ल्ड कप का, मेरा ख्याल है कि इन 2 अपसेट्स के बाद ना बहुत ज़्यादा इस वक्त बेहतरीन हो गया, बहुत मज़ा आ रहा है इस वर्ल्ड कप के अंदर, बहुत इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है। और साथ साथ जो बड़ी टीम है वो डर भी गए होंगे यकीनन इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंसेस देख के। तो अफगानिस्तान एंड नेदरलैंड ये किसी भी वक्त किसी भी टीम को हरा सकती है, उन्होंने शो कर दी अपनी कैपेबिलिटी। Alright, with that we're going to take a break right here on the pavilion. When we come back, there's more on the other side. Don't go away, keep watching. Welcome back to the pavilion, and with that, Misbah, you had something to say. तुझे जास्त है आज। Just फुल जाज। अच्छा, क्लोज गेम्स की बात हो रही थी कि जो भी टीम जीत रही, चाहे अफगानिस्तान जीती है इंग्लैंड से, एक स्टेज पे बिल्कुल साफ पता चल गया था कि कौन विनर है। इंग्लैंड कहीं पे भी नहीं लगा कि वो मैच के अंदर है। पहले 10-15 ओवर्स के बाद अंदाज़ा हो गया कि इंग्लैंड इज़ आउट ऑफ द गेम। जितने भी मैचेस हैं, साउथ अफ्रीका का मैच हुआ नीदरलैंड के साथ, वन साइड मैच हो गया थोड़े से ओवर 10-15 ओवर्स के बाद। तो मुझे ये लगता है कि अभी तक जो 2 टीमें इंडिया या न्यूजीलैंड है, ये प्रॉपरली क्रिकेट, वनडे क्रिकेट को वनडे क्रिकेट की तरह सारी बेसिस कवर करके खेल रहे हैं। इनका पूरा एक प्लान है कि पावर प्ले ऐसे खेलना है, मिडल ओवर्स में हमने ऐसे बैटिंग करनी है, फिर फिनिश किस तरीके से उसको करना है। इवन जब डिफेंड करने भी आते हैं तो उनकी सारी बेसिस कवर है बॉलिंग में, कब क्या करना है, किस फेज़ में क्या करना है। बाकी जो टीमें हैं वो T20 वाले फ्लो में खेल रही है। Right. और जहाँ रीबिल्ड करना पड़ता है या फर्स्ट प्लान ए उनका इधर उधर होता है, चाहे वो बैटिंग है बॉलिंग है, उसके बाद कवर नहीं है उनके पास। और दैट्स वाई वो इतना बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि शुरू से ही आपको पता चल जाता है कि कौन जीत रहा है ये मैच। तो मुझे लगता है टीमों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। वनडे क्रिकेट इज़ स्लाइटली डिफरेंट, आपको कहीं ना कहीं उसको उस तरीके से प्लान करना है, मिडिल फेज को उस तरीके से खेलना है। वनडे क्रिकेट बहुत कम हुई है बिल्कुल। और यहाँ पे क्रेडिट जो है, जैसे आपने मिसबा भाई बोला, इंडियन टीम को और न्यूजीलैंड टीम को, इनके बेसिस इसलिए कवर्ड हैं कि इनके जो थिंक टैंक है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको सेंस है कि ODI क्रिकेट जो है उसको कैसे खेलना है। बाकी आप टीम्स उठा के देखें, सारी बहुत कम हुई है और वर्ल्ड कप आता है 50 ओवर्स वाला 4 साल के बाद, तो ये भी एक ऐसा एलिमेंट है। हाँ, आज इंडिया की मैं ज़रूर यहाँ पे बात करूँगा, वो ये है कि 2 लोग अभी तक
15 में से नहीं खेले। राइट। एक है मोहम्मद शमी और एक सूर्या कुमार यादव। इनको कहीं ना कहीं इनको फिट इन करना चाहिए, एक चांस देना चाहिए ताकि ये मैच प्रैक्टिस में रहे। बाकी सारे खबर तो अभी आई है कि शायद शामी आज खेले, आई डोंट नो किसकी जगह, बट दैट्स अ न्यूज़ वी गॉट। नॉट श्योर। शार्दुल ठाकुर की जगह शायद वो जो है ग्राउंड से खेले। खेले तो ये देखें, इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट, कोई भी इंजर्ड हो सकता है। तो आपके जो बाकी के जो बेंच पे बैठे हुए हैं वो भी मैच प्रैक्टिस में रहने चाहिए, क्योंकि किसी क्रूशल मैच में जो डिसाइडर हो उसमें आपको नया बंदा खिलाना पड़ जाए तो एटलीस्ट दैट पर्सन शुड बी इन मैच प्रैक्टिस। ये अच्छा आपने पॉइंट किया। इज दैट मे बी दे वांट टू ब्रिंग अनदर सीमर इन बिकॉज़ बांग्लादेश इज गुड अगेंस्ट स्पिन एंड दे वांट टू मे बी नॉट टेक एनी चांसेस एंड लोड अप ऑन द फास्ट बॉलिंग। या आई सपोज शार्दुल बैट्स एट नंबर 7 और नंबर 8। नंबर 8 पे आता है, तो अगर वो अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं अगेंस्ट बांग्लादेश, आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया एंड ही इज इन वेरी गुड निक शामी। ही इज रियली बॉल्ड वेल ओवर द लास्ट ईयर। राइट। इज अ विकेट टेकर, आके सीम मारता है बॉल दोनों तरफ, उसका सीम भी होता है नया गेंद, और रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी करता है। आई थिंक स्पेशली अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स, जैसे राउंड द विकेट आके बड़ा ज़बरदस्त उनका गेंद ऑफ द सीम एयर में भी बाहर निकलता है। और हमने देखा कि बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर बाहर गेंद निकलता है उनको तो उनको मुश्किल हो रही है। इंग्लैंड के अगेंस्ट भी फिर टॉप 3। बांग्लादेश को अपना थोड़ा बैटिंग देखनी पड़ेगी, जैसे उनका तंजीद लड़का है, इज इन वेरी बैड निक, एक्सपीरियंस नहीं है। वसीम भाई, जस्ट 8 गेम्स, एवरेज भी कोई खास नहीं है, अभी इनएक्सपीरियंस है, फिर बहुत बड़ी स्टेज है। दैट्स व्हाई आई थिंक कि टॉप ऑर्डर अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है और आप स्टार्ट में अंडर प्रेशर हो जाते हैं, विकेट्स लूज करते हैं, देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक दैट्स आल्सो डिडंट हेल्प बिकॉज़ एट द लास्ट मिनट तमीम इकबाल decided not to come on a tour. Apparently I read, it's right or wrong, I'm not so sure, he said मैं 5 से 6 मैच खेलूंगा सिर्फ वर्ल्ड कप जाके. So obviously skipper Shakib got bit taken aback. If you're on a tour you can't just say कि मैंने आधे मैच खेलने आधे नहीं खेलने. You can't pick and choose. You cannot. मोइन आपसे सवाल है, if you are the Bangladesh batting right now, जो जिस नौयत की इंडिया की बॉलिंग चल रही है, जबरदस्त, ऑल बेसिस कवर्ड, which is the bowler that you would pick on के यार फिर इस पे से हमने स्कोर निकालना है, या ये दो बॉलर्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं बांग्लादेश के एस्पेक्ट से, ये कौन से दो बॉलर्स होंगे? अरे देखिए, दोनों, बुमराह भी बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, और नेचुरली शरदुल को भी खिलाया, शरदुल भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। और दूसरी तरफ अगर हम ये तीनों मैचेस देखें बांग्लादेश के, कहीं भी इनकी पार्टनरशिप कोई भी नहीं लगी, कोई अच्छा स्टार्ट नहीं मिला। ऑल्दो मिडिल ऑर्डर ने थोड़ा बहुत संभाला ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन ओपनिंग स्टैंड इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। और जिस तरह की हमने पिच देखी, अगर आज बैटिंग भी आती है तो एक अच्छा ओपनिंग स्टार्ट जब तक नहीं मिलेगा, इनकी बैटिंग क्लिक नहीं कर सकती। उसको नेचुरली, जैसे आपने क्वेश्चन किया, आपको टारगेट करने पड़ेंगे, बहुत ही मुश्किल होगा इनिशियली, बिकॉज आपको नया बॉल गुजारना होगा। जिस तरह बुमराह गेंद करें, दोनों तरफ स्विंग करते हैं, सीम भी हो रहा है उनका बॉल पिच से, तो आप इजी नहीं होगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जल्दी नहीं करनी होगी यहाँ पे। मगर कौन सा बॉलर है जिसको कि टारगेट कर सकती है बांग्लादेश आज? जब आप ये, मेरा कहने का मकसद ये है, देखिए ऐसी बॉलिंग लाइनअप के अंदर से आप किसको टारगेट करें? टारगेट देखें, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज कि बॉलिंग तो अच्छी हो रही है, आप उसको काउंटर अटैक नहीं करेंगे। जहाँ बॉल मिले, जहाँ आपके जगह पे आ जाए, जहाँ पे आप हिट इजी कर सकते हैं या आपके पास ऑप्शन मौजूद है, तो आप किसी भी बॉलर को टारगेट कर सकते हैं। अनटिल और अनलेस के यू आर क्लियर, यहाँ से क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। वो क्लैरिटी की मैं बात कर रहा था कि अभी इन बैट्समैन में नहीं है, बिकॉज तीनों मैच के अंदर आप देख लें कि बहुत ही छोटी छोटी पार्टनरशिप, जो मैक्सिमम इनकी पार्टनरशिप हुई या 19 रन की हुई है बांग्लादेश की, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू टारगेट एनी पर्टिकुलर बॉलर। इसमें ये देखना चाहिए, अगर स्पिनर को खेलना आसान है तो स्पिनर्स पे अटैक करना चाहिए। तो कुलदीप यादव को कौन अटैक करेगा? नहीं, अगर स्पिन नहीं हो रहा बॉल करेंगे, कुलदीप यादव भी वो बॉल ही फेंकता है, वो भी टारगेट हो सकता है। पब्लिक के पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, और अगर पेसर का बॉल खेलना आसान है तो वो करना चाहिए ऑन अ गिवन डे। और एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे जो है बोलना चाहता हूँ, अगर मोहम्मद शमी आते हैं शार्दुल ठाकुर की जगह, तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम का बैलेंस और अच्छा होता है। वो इस तरह अच्छा होता है कि शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या, ये उनके जो है 5th और 6th बॉलर है। तो अगर ये आ जाएंगे तो फिर कोई लूप पोल नहीं है उनमें। मैं ये नहीं कह रहा कि हार्दिक पांड्या
जो है वो भी 140 कर रहे होते हैं। Nice, nice. All right, with that we've got a match preview. Let's take a look. Well, there you have it. Good to see Shakib Al Hasan there. मेरा ख्याल है 4-5 और वर्ल्ड कप आराम से खेल लेंगे वो. Look super fit. We're going to take a break. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. आज हम आपको पहली दफ़ा पुणे लेकर जा रहे हैं जहां पर इंडिया बामुकाबला बांग्लादेश का मैच है। पिच रिपोर्ट अब से कुछ लम्हा पहले हमने आपको दिखाई। मेरे साथ पवेलियन में मौजूद पाकिस्तान के 4 फॉर्मर कैप्टन्स, 4 बेहतरीन क्रिकेट का तज्ज़ियाकार। I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. Wasim, let's talk about the Bangladesh bowling here now for a minute because हमने उनकी बैटिंग की तो there's a crisis there in their batting lineup. But on their bowling side now, अब वो बात हो रही थी कि शाकिब अल हसन खेलेंगे, वो लग रहे हैं कि फिट है। उनका इंटरव्यू भी अभी आप देख रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, सो ही माइट बी जॉइनिंग इट। बट व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ बांग्लादेश बॉलिंग राइट नाउ? जनरली जब ये खेलते हैं बांग्लादेश में, मोस्टली जो मैचेस हमने देखे हैं या फॉलो किए हैं, ये स्पिन पे बड़ा रिलाई करते हैं। बट इन लास्ट आई थिंक 6-8 मंथ्स और ईयर इनके फास्ट बॉलिंग भी इम्प्रूव हो गई है। तस्किन अहमद अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप में चल नहीं रहा, बट ओवरऑल उसकी 23 विकेटें हैं 14 ओडीआईज में सिंस लास्ट ईयर और सो। एंड देन ऑफ कोर्स शरीफुल भी इज़ बॉलिंग वेल विद द न्यू बॉल, उसका बॉल अंदर आता है। तो आई थिंक अब डिपेंड करता है वो खेलता नहीं खेलता, बट राइट नाउ जो उनकी टीम है उसमें स्पिनर्स में देखा जाए तो सिर्फ शाकिब है जो वेरिएशन करता है, जो एक्सपीरियंस है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन ओडीआईज। बट बाकी ऑफ स्पिनर के बाद दूसरा नहीं है, वो बस नॉर्मल ऑफ स्पिन करते हैं। सो फास्ट बॉलिंग मेरे ख्याल में इनकी बेहतर है बजाय कि स्पिन बॉलिंग से इस वर्ल्ड कप में सो फार। फॉर रोहित शर्मा ने अपना स्ट्राइक रेट जो है शोएब, वो अभी इस पावर प्ले में इस फॉर्म के अंदर 76 से 106% 106 पे चला गया। तो फास्ट बॉलर जो आएंगे आज उनको बॉल करने के लिए, उनकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए रोहित शर्मा के लिए? एक बात आप लोग पहले बोलते रहे हैं, मिसबा ने भी पॉइंट आउट किया, आपने भी की कि रोहित शर्मा को बाउंसर जो कि एक ऊंची वाली हाइट पे, नॉट द लो बिकॉज हिज पुल्स आर रियली गुड, आउटसाइड ऑफ स्टंप, दैट इज वन टेक्निक टू टेक हिम ऑन। बिल्कुल, और आई गेस एक ही वो नहीं चीज़ पे टारगेट करना चाहिए, जो उनके वीक एरियाज हैं वो सबको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करनी चाहिए। वीक एरियाज हैं रोहित शर्मा के? लेट्स आजकल तो एक भी नहीं नजर आ रहा है। आजकल तो अर्ली ऑन अंदर आते हुए बॉल पे वर्नेबल होता है वो, जिस तरह वो शॉट खेलता है, क्योंकि ये बड़ी पैट शॉट है उसकी, ज़रा सा भी उसको नज़र आता है लेग स्टंप पे, उसको पूरा हिट माना जाता है लेग साइड पे। तो फ्रैक्शनली अगर बीच में हुआ ना तो वही बॉल होगी। मुझे अगर मेरी समझ जितनी भी कहती है, वो मुझे लगता है कि आज यहाँ पे तस्कीन को नया बॉल नहीं कराना चाहिए। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि शरीफुल और इन दोनों को खब्बों को कराया जाए बॉल, मुस्तफीज़ को, जी हाँ। तो दोनों को अंदर लाना आता है बड़ा अच्छा, तो वो हो सकता है कि यहाँ पे इनसे मुश्किल हो। अदरवाइज जैसे शोएब ने बोला, कहीं कोई लूप पॉइंट इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, लूप होल जहाँ पे हम कह सकें कि यहाँ पे फंस सकता है। और जो बाउंसर की बात की है, नेचुरली बाउंसर अगर तो हाइट में ज़्यादा ऊपर हो तो उसमें आपके पास भी लाइक बट मोइन वो भी तो रिस्की है ना। पहले रिस्की वाइड बॉल बिल्कुल रोहित के खिलाफ इन फॉर्म बैटर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ शॉर्ट पिच बॉलिंग। तो आप फील्ड क्या रखोगे? थर्ड मैन ऊपर रखना पड़ेगा, फाइन लेग और स्क्वायर लेग पीछे रखना पड़ेगा, या फाइन लेग ऊपर या स्क्वायर लेग पीछे। थर्ड मैन, और अगर बॉल जा रहा है तो फिर थोड़ा वाइडिश फाइन लेग रखें, और अगर थोड़ा स्लो है तो आप स्क्वायर लेग स्ट्रेट अवे वापस वो पीछे ले लें और फिर उनको वही शॉट जो है वो करवाएं। ठीक है, वो ऐसे बैटर हैं, आपको चांसेस लेने पड़ेंगे, बेशक थोड़े रन्स भी लीक हो जाएं एज बांग्लादेश टीम, लेकिन उनका विकेट लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ही हैज़ बीन सेटिंग द टोन। जब वो टोन सेट करते हैं तो फिर नीचे वाले जो हैं वो वैसे ही उनके बड़े बहुत पक्का गेम है, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, फिर वो रुकते नहीं हैं, वो फिर खेलते जाते हैं अपने मोमेंटम में। और जब विराट आता है 3 नंबर पे, एक एंड से वो ऐसे रन्स चोरी हो रहे होते हैं कि पता नहीं कोई है और कोई है भी नहीं, इस तरह रन निकल रहे होते हैं। That's a nice way of putting it. कोई है और है भी नहीं, लेकिन very nice way of putting it. That's a good analogy right there. I तो like that. इसलिए रोहित का विकेट लेना बहुत ज़रूरी है, और इंडियन बैटिंग लाइनअप दे आर रिलाइंग हाईली ऑन हिम, और अगर उनका विकेट मिलेगा तो बांग्लादेश जो है वो हमेशा गेम में रहेगा। Yeah, absolutely. Misbah, for you, what do you think would be बांग्लादेश के, यार अगर फर्ज करें बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है, what kind of score should they go for? Because एक और चीज़ भी होती रही है, वो बहुत सारे हम सुनते रहे हैं प्री मैच में, इंटरव्यू में, कि जी 300 रन की पिच है तो 350 320 का टारगेट करेंगे, और वे 220 भी नहीं होता। What should be Bangladesh's approach here now to set a total
Or if they want to defend, what kind of total would they like to defend? I mean, how low can they manage, if they can? लेकिन जो वेन्यू स्टैट हैं और जो पिच नज़र आ रही है वो तो क्लियरली ये कह रही है कि 300 से नीचे काम नहीं बनेगा। और फिर आपके पास कोई बॉलिंग में उस तरह का एक्स फैक्टर नहीं है, ना कंडीशंस आपको कोई ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, तो आपको एटलीस्ट ये सोचना है कि 300 हमने करना है। बट ये नहीं होता कभी भी आप एज ए बैटिंग यूनिट सोचते हैं कि 330 आपने सेट कर दिया, राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल आपने उस तरीके से खेलना है। आपको देखना होता है, फिर भी एज ए बैटिंग यूनिट जाते हैं, आप बॉल खेलते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट देखते हैं, पिच किस तरीके से बिहेव कर रही है, और फिर आपको रीअसेस करते हैं उस टोटल को। अगर आप एक दफ़े डिसीजन करके जाएंगे और पिच उस तरीके से नहीं है या बॉलिंग उस तरह की नहीं हो रही, तो फिर इस तरह के कोलैप्सेस होते हैं। तो पार्ट्स में आपने खेलना है। 50 ओवर, ओके 10 ओवर्स, इफ़ द बॉल इज़ कमिंग नाइसली, आपको लगता है कि वी कैन टेक इनिशिएटिव, आप अटैक करते हैं, 10 ओवर कैश करने की कोशिश करते हैं। अगर बॉल अच्छा हो रहा है तो देन आपको थोड़ा असेस करना है, टाइम गुजारना है, कोशिश करनी है कि हम ज़रा रीबिल्ड यहाँ पे शुरू में ही हम ज़रा प्रिजर्व कर लें अच्छी बॉलिंग को, एंड देन वी विल जस्ट सी कि स्पिनर्स पे हम अटैक कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है किसी भी टीम के लिए। ये विजुअल्स आ रहे थे मिसबा, जब आप बात कर रहे थे ग्राउंड से लाइव विजुअल्स आ रहे थे। रोहित शर्मा जो थे वो पिच की इंस्पेक्शन कर रहे थे, बहुत गहरी नज़र उन्होंने डाली है इसके अंदर। वसीम क्या कोच के साथ खड़े हुए थे, राहुल द्रविड़ थे जी, वो भी साथ में थे, and they were Yeah, discussing. they're just I think routine by any skipper or any batter, just go feel the pitch। वो हाथ इसलिए रखते हैं पिच पे, कई दफ़ा जब आप पाम्स लगाते हो तो पता लग जाता है कि मॉइस्चर कितना है। You get a rough idea, not exact idea, but you get a rough idea, but it looks a very good deck from here. It does. We've got Taskin with us. Let's listen in. Right, and with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. But when we come back, we're closer to the toss and closer to the action. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. आज हम पुणे, where India is clashing with Bangladesh. With me in the Pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan, and Wasim Akram. We're coming very, very close to the toss here. मोइन, आप एक बड़ी डिस्कशन करना चाह रहे थे कि टॉस जीतकर कौन सी टीम क्या पहले करेगी, और मिसबा के साथ आपका बड़ा एक रोबस्ट किस्म की कॉन्वर्सेशन हुई इस ब्रेक के अंदर। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी थॉट है कि जिस तरह का पिच हमने देखा है, दोनों टीमें जो भी यहाँ टॉस जीतेगी वो बैटिंग करनी चाहिए। मिसबा का ये कहना है कि इंडिया शायद बैटिंग ना करे, इंडिया प्रेफर करे कि यहाँ पे पहले बॉलिंग करे। क्या वजह, आप क्यों ये सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि इंडिया स्पेशली जब बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलती है तो कोशिश उनकी ये है टू नो द टारगेट। वो ज़्यादा अपनी बैटिंग को बेसिकली टारगेट देना चाहते हैं कि जो भी टारगेट होगा हम वो करेंगे। पहले अर्ली ऑन डिसिप्लिन बॉलिंग करें, इनको रिस्ट्रिक्ट करें, और उनकी कोशिश यही होती है कि लो से लो स्कोर पे दूसरी टीम को रोकें। और एक और भी इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि जैसे रोहित शर्मा, विराट और केएल राहुल, दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे टेक दैट प्रेशर, क्योंकि ये इनके मैचेस भी आप देखें तो काफ़ी सारे हैं। तो जो ज़्यादा मैचेस खेला हुआ होता है वो उस पे जो जब प्रेशर वाली क्रंच सिचुएशन जिसको हम कहते हैं वो जब आए तो ये उनका काम होता है कि जो अब लीड फ्रॉम द फ्रंट करें, और उसमें एक कैप्टन भी है, ये भी एक वजह हो सकती है। Yeah, that makes life. We're getting closer to the toss. हमसे कुछ लम्हे बाद हम आपको पुणे ले जाएंगे जहाँ पर टॉस होगा. So you both have different perspective कि कौन क्या पहले करेगा. But keeping in mind this pitch, I think everybody would like to. ओना दी मर्जी. हाँ, गलती सही है. ओना दी मर्जी है. इजाज़त ली है इन्होंने भाईजान को लो. इजाज़त ली थी 100%. लाने में रहना. सही बात है. All right. So this should be a good game of cricket that we are anticipating, but also remember that tomorrow Pakistan has a very, very important game of cricket, and that's big game. Don't forget to arrange the brick. The brick. नहीं, brick नहीं कहना, bit. गुल खान. मिसबा तेरी आवाज बंद. ओए तुम्हारी. Yeah. So सवाल नहीं करना मेरे से. नहीं, मैं तो नहीं. 8 bit गुलकान. उन्होंने कहा भाई 8 bit गुलकान, कल मिसबा तेरी आवाज हो जाएगी बंद. ये है ना बेसिकली. मैं नहीं बोलूँगा कल. हाँ? कल मैं नहीं बोलूँगा. शो पे बोलना पड़ेगा. नहीं, पीछे जाके नहीं बोलना. नहीं. नहीं, प्रैक्टिस नहीं होगी तो यहाँ आके कैसे बोलूँगा? वजह नहीं ना तुझे जान रहे कि क्यों नहीं बोलना. All right, it's time to flip. It's time to flip. We're going to take you to Pune for the toss.
Alright, the news out of Pune is that बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। मिसबा, बहुत जबरदस्त बात, चूंकि जब रोहित शर्मा ने भी अपना इंटरव्यू दिया है टॉस के वक्त, तो उसने कहा कि हम टॉस जीतकर बॉलिंग ही करना पसंद करते हैं। गोया जो आप कह रहे थे वो दुरुस्त हुआ, और मोइन जो आप कह रहे थे वो भी दुरुस्त हुआ। मैंने कहा था दोनों टॉस जीत के बैटिंग करना पसंद करेंगी, तो बांग्लादेश ने बैटिंग की है ना। तो दोनों ने तो नहीं ना, कि दूसरे ने तो कह दिया तलवारा कर लो, मतलब खंजर काट के लड़ पो दो। I have no idea what to say to that point, but okay, there is a reason why you have crooked fingers. That's all I can say. मनीना मनीना वसीम भाई चलिए इजाजत है। क्यों इजाजत है? अभी तो मैच शुरू होने में कुछ लम्हे बाकी हैं। प्लेइंग 11 आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं कि प्लेइंग 11 अगर आ गई है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं। अभी आने वाली है प्लेन, एक्चुअली वो जरा वो है, बट हियर्स द थिंग, वसीम, शाकिब इज नॉट देयर। Yeah, big draw, big. Taskin has also been changed, so this is या टशकिन भी नहीं खेल रहा, साकिब भी नहीं खेल रहा, और जो उनका स्क्वाड हमने अभी मिसबा ही डिस्कस कर रहा था मेरे साथ ब्रेक में कि ये दे हार्डली एनी बैटर, दे मोर बॉलर देन बैटर्स, एंड आई थिंक वो लास्ट मिनट तमीम से फ़र्क तो पड़ा होगा इनको। जो उनका प्लान होगा कि 15 में आएगा, ओपन करेगा, थोड़ी बैटिंग लंबी होगी, उससे भी फ़र्क पड़ा होगा। एंड आई सपोज दे हैव टू ग्रूम बैटर्स फॉर फ्यूचर। साकिब ने सारी उम्र तो नहीं खेलना, सो देखो ना, अब तमीम के जाने से फ़र्क तो पड़ा है इन एक्सपीरियंस में, बैटिंग में इज़ अ गुड प्लेयर। अब शाकिब जब भी रिटायर होगा 2, 3, 4, 5 साल में, देन दे डोंट हैव एनीवन एनी बैकअप, सो दैट्स व्हेयर दे हैव टू कंसंट्रेट नाउ। ऑलराइट, ये मिसबा बांग्लादेश प्लेइंग 11 स्क्रीन के ऊपर आ रही है, टेक अस थ्रू दिस चेंजेस देयर। बड़ा मिस है, कप्तान नहीं खेल रहे, ऑलरेडी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, एक और बैटर उसमें कम हो गया है, लिटन दास, तंजीद, शैंटू और मेहदी हसन मिराज एज एन ऑलराउंडर हैं, बेसिकली ऑफ स्पिनर हैं, बट बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। हेरिडोई, मुशफिक, महमूदुल्लाह, लेट्स सी, नसम आए हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं ये, हसन को चेंज किया है इन्होंने तस्कीन के साथ, शोरफुल और मुस्तफीज़ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो लेट्स सी हाउ दे बेसिकली गो अबाउट। इंडिया की टीम, वसीम, It's a good side, same side as the last game, no change. People were thinking शायद शर्दुल की जगह शामी को लाएं, but no, they decided कि बैटिंग थोड़ी लंबी करेंगे। अब आप 3 फास्ट बॉलर देख लें, बुमराह है, इनफैक्ट 4, हार्दिक, सिराज, बुमराह एंड शर्दुल, एंड देन ऑफ कोर्स 2 प्रॉपर स्पिनर्स, कुलदीप विकेट टेकर एंड जडेजा मिड ओवर्स में बड़ी ज़बरदस्त करते हैं बॉलिंग, और विक्टो में a very strong batting lineup, so it's a good side. Yeah, they're going unchanged. India is going unchanged. With that, we're going to take a break right here in the pavilion. When we come back, we're closer to the action. Welcome back to the pavilion. और पुणे से खबर यह है कि बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, और इसके साथ ही वक्त हुआ है पामोलिव नेचुरल का एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस। राइट जी मिसबा, एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस। इंडिया सर, इंडिया, ऑलराइट। वसीम, भारत फॉर मी, इंडिया, बांग्लादेश। भाई सुन ले पूरी बात, क्या हो गया आपको? सुना दे यार। मैंने कहा बांग्लादेश आज नहीं जीतेगा। ओके, पुट्ठी गाली इंडिया पुट्ठी गल पाएं इतने हो गई है। India. All right, we have 4 Indias here, and those are your expert predictions, brought to you by Palmolive Natural. और वक्त हुआ है player to watch out for, brought to you by Ufone. Right, Shoaib Malik, your player to watch out for today. विराट कोहली। V. Kohli, विराट कोहली, मोइन खान। शुभमन गिल। बात पूरी कर लें, हो गई, यही है ना, पक्की बात है ना, उंजी तो नहीं, फिर गुगली तो नहीं मारने का मूड आपको। हाँ जी, वैसे उन भी तारे बना रहे थे। डबल दिया यार, तार तो स्टार दिया उसको डबल। शुभमन गिल, वसीम। I'll go for Kuldeep Yadav. Kuldeep Yadav, all right, and Misbah? रोहित शर्मा। Rohit, the captain. Okay. And those are your players to watch out for. Brought to you by Ufone. Right, Janab. So, toss to Bangladesh. Bangladesh come in to bat first. Shoaib, आपको क्या लगता है मौसम कैसा होगा पुणे में? पुणे में वसीम भाई ने बताया ना, पूरी रिपोर्ट दी है, थोड़ा सा प्लेजेंट होगा, लेकिन बांग्लादेश के ड्रेसिंग रूम में प्लेजेंट हो सकता है अगर ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिले तो। That's what they're hoping for basically, that they get a good We are start. all And hoping. guys, remember, मैंने ऐसे मलिक से पूछा है जिस तरह वो जो है ना मैग में मौसमी आते थे पुणे। ये जरा स्क्रीन पे देखें, मौसम आ रहा है, आप वो देखें, मौसम आ रहा है, पढ़े ना। बेहतरीन है। 31 डिग्री जो है सेल्सियस इस वक्त it's वहाँ going to पर cool मौजूद है। down a bit after about a couple of hours because अच्छा, 2 o'clock start. Quick question, is the dew factor been overdone in this World Cup? Have we read too much into dew?
Has the You dew see, really the made an reason we impact? read, or everybody read too much into dew, the read too much into dew is because 5, 8, 6, 2 years ago it was a massive difference. Apparently now, not apparently, some odd reason now, अगर विकेट पे टर्न हो रहा है और सेकंड इनिंग में ओस भी पड़ती है, वो टर्न ही होता रहता है. पहले बिल्कुल सीधा आता था पिच की, सीमेंट की पिच की तरह जब ओस पड़ती थी. अब आई डोंट नो, अब बॉल ग्रिप भी होता है. यू रिमेंबर PSL 2 years ago जो अबू धाबी में हुई थी इन जुलाई, हाफ फेयर हाफ देयर बिकॉज ऑफ कोविड, एंड अबू धाबी वाज 50 degrees. Yes. तो हम जब शाम को इवन प्रैक्टिस में भी 9 बजे जाते थे रात को, और वहाँ एक फॉग होती थी घास के ऊपर, दैट वाज हीट कमिंग आउट, और इतनी ड्यू थी वहाँ पे, और मोस्टली टीमें वहाँ जीती हैं जो सेकंड इन्होंने बॉलिंग की है. को सीम भी हो रहा था, स्विंग भी हो रहा था, टर्न भी हो रहा था. बट फैक्टर ज़्यादा है जिसकी वजह से मुझे लगता है अगर ग्रास कवर हो ना पिच के ऊपर, देन इजीली स्किड करके बॉल बल्ले पे आ रहा होता है जब वो ड्यू जो भी गिरती है. वो एक स्प्रे भी तो करते हैं ड्यू को कम करते हैं केमिकल. वो स्प्रे क्या करता है, स्प्रे जो है जब